आज सबसे ज्यादा बेरोजगार कौन है? हिंदू है या मुसलमान है? हिंदू है। आज सबसे ज्यादा महंगाई कौन झेल रहा है? हिंदू झेल रहे हैं, मुसलमान झेल रहे हैं? हिंदू झेल रहे हैं। आज गरीब सबसे ज्यादा कौन है? हिंदू है या मुसलमान है? हिंदू है। If you can't watch a full podcast, watch a clip instead. You'll be as entertained and as informed. That's my guarantee. That's why you gotta subscribe to those cast clips. मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब एक मेजॉरिटी हिंदू जिसको बीजेपी केटर करती है एक्सक्लूसिवली अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के अंदर या अपनी विचारधारा के अंदर, कांग्रेस अब उस मेजॉरिटी हिंदू को बिल्कुल भी केटर नहीं करती है. वो एक्सक्लूसिवली माइनॉरिटीज़ के हित में ही बात करती है. इट्स ऑलमोस्ट एज इफ the majority Hindu is disenfranchised by the Congress, so it finds no recourse but to vote for the BJP. At least the BJP allows them to consolidate their political and religious identity. So Vinamra, since you are extrapolating a thought that you have, let me ask you for an example. आपके पास एक भी एग्जाम्पल है ऐसा? Not one. जब हम कहते हैं कि हम 30 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे जो खाली पड़ी हैं, Are we catering to one religion? Actually, majority of jobs will go to the Hindus. जब हम कहते हैं पर आप माइनॉरिटीज को फ्रंट पे रखते हो. नहीं, कहाँ कैसे? आप एग्जाम्पल बताओ ना मुझे. इस वाली कॉन्वर्सेशन के अंदर आपने रिपीटेडली दलित्स का मेंशन करा है, एसटीज का मेंशन करा है. आई अंडरस्टैंड व्हाट डिसएडवांटेज्ड है, बट दिस इज द रीजन व्हाई द बीजेपी गॉट मैंडेट्स इन द टू टर्म्स इट डिड, because it seems so like you are telling me that the Dalit, आदिवासी और पिछड़े minorities हैं? Actually नहीं, they are the majority community in this country. How is that possible? 85% people in this country belong to either SC, ST or OBC. The reality is that when we sit in a podcast like this and the milieu that we are surrounded by, we are only surrounded by upper caste people. Where is the representation? When Rahul Gandhi gets up and asks, how many top 200 companies listed on the Sensex have a single Dalit, a single tribal, a single OBC CEO? Are we not going down the whole America में वो जो gender diversity inclusion वाली road होती है, where सिर्फ tokenism करने के लिए हम लोगों को लगा रहे हैं? आपके मैनिफेस्टो में भी ये लिखा हुआ है कि हम रिजर्वेशन और बढ़ाने वाले हैं. So Vinamra, according to you, जो तबका 85% of this country है, it's news to me. बिल्कुल completely ignorance. You have no idea accepted. about this? No, because मैं हमेशा I follow media narratives. I don't have my ears to the ground. और बार बार ये वर्ड सुनने को मिलता है, हिंदू मेजॉरिटी को केटर कर रहे हैं, हिंदू मेजॉरिटी को केटर कर रहे हैं, राइट? So let me answer both your questions. तो हर टाइप के होते हैं, because what the BJP believes is that हिंदुत्व is a fundamentally an anti-caste movement, consolidating Hindus. Hindutva is an anti-caste movement. Yeah, you should speak to some of my friends. I really think that you should study a little more of sociology and history now that you're going to be doing podcasts. You really should brush up your knowledge on this. But without getting down that way, 85% of people in this country belong to the tribals, belong to the scheduled castes and the OBC community. Where is their representation? I was in media and I have worked in newsrooms from actually across 3 big groups of this country. I have never worked with an editor who belonged to any of these communities. Not a single editor, even today in mainstream media, is an SC, ST, OBC. Are you telling me they are lesser children of God? Are you telling me that they are less intelligent than other people? Why is it that 90 secretaries in the government of India, that's the topmost position for IAS officers, why only 3 OBCs? Why is it that in central universities, in an IIT, only 4% professors are OBCs? They actually constitute about 50% of your population. Why? The reality is that India has been a caste-ridden society for decades, for centuries. They have been at the receiving end of discrimination. And unless you are going to not take affirmative action, they will continue to be where they are. आपने उनको हाशिए पर रख छोड़ा हुआ है. एक नाम के नाम पर रिजर्वेशन है. The reality is कि जब तक आप हाशिए पर रहे लोगों को मुख्य धारा में नहीं लाएंगे, unless you don't get that Adivasi sitting in Madhya Pradesh who's being urinated upon. Let me ask you a question. I come from the so-called upper caste. So do you. Can any man... No, I'm an OBC. Can any man... You're an empowered OBC, maybe a rich OBC. Can any man urinate on a head of an upper caste? No. No. बवाल मच जाता, आग लग जाती. Head severe हो जाएगा. Exactly. दलित के साथ या आदिवासी के साथ ये क्यों हो सका? क्या किसी ब्राह्मण, क्या किसी ठाकुर को बरेली में अपने मन से वोट डालने पर बीजेपी के मतलब सरकार के तहसीलदार के गुंडे मार सकते? हाथ लगाकर देखते, हाथ काट देते लोग.
That is what caste discrimination is. And the only way to do away with that is to empower people, to get more and more people in mainstream politics, in mainstream society, in mainstream governance. And unless you are not going to, so it's very fashionable to say, अब आप तो आरक्षण बढ़ा देंगे. हाँ, आप देखिए ना, जिनका 2% पॉपुलेशन है उनके 80% लोग बैठे हुए हैं, तो कहीं पर तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, अफर्मेटिव एक्शन लेना पड़ेगा. Because it's, we can't, I don't think when the country is so skewedly divided and there are so many people who are at the margins, you can turn, you can look the other way. और मैं तो आप अपने शो पे किसी भी बीजेपी वाले को बुलाइएगा और उससे आप एक सवाल पूछिएगा, are you for the caste census or are you against it? And I can give it to you in, not at all, I can give it to you in writing and bet my bottom dollar on it that each one of them will say we support the caste census. Who can यार? 85% आबादी को आप बोलेंगे हम सपोर्ट नहीं करते हैं. मिस्टर मोदी ने पार्लियामेंट में कहा है मैं सपोर्ट करता हूं. मिस्टर मोदी पहले कहते हैं भाई 4 ही कास्ट हैं, गरीब, युवा, महिला और क्या, और फिर पार्लियामेंट में बोलते हैं मैं सबसे बड़ा ओबीसी हूं. तो रियलिटी है कि आप ओबीसी मुख्यमंत्री बनने के बाद बन गए, कोई बात नहीं, आपने बाकी ओबीसीज के लिए क्या किया. तो मेरा अपना मानना है, एक तो ये मैं कास्ट पे बोलना चाहती हूँ, और आपने एक हिंदू धर्म की बात की. कौन होते हैं ये सर्टिफिकेट बांटने वाले हिंदू धर्म पे? ये कौन है? ये शंकराचार्य हैं. शंकराचार्यों को तो आप बुलाते नहीं है राम मंदिर के इनॉग्रेशन पे. शंकराचार्यों को बोला जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की संस्थापना करी इस देश में, और उन शंकराचार्यों को आपने घर बिठाने का काम कर दिया. आप सबसे बड़े पुरोहित बन गए. क्यों नहीं, आपने ऐसा क्यों किया? आई एम अ प्रैक्टिसिंग हिंदू एंड आई एम अ वेरी डिवाउट प्रैक्टिसिंग हिंदू. आई डोंट बिलीव इन द नैरेटिव दैट दे पेडल. मैं राम की बहुत बड़ी भक्त हूं, लेकिन मैं राम राज्य में भी उतना यकीन रखती हूं जितना मैं भगवान राम में रखती हूं. आई कम फ्रॉम यूपी. तो फिर कांग्रेस क्यों नहीं गई वहां पे? मैं गई, मेरे बहुत सारे साथी गए. वो एक पॉलिटिकल फंक्शन था. उस पॉलिटिकल फंक्शन में इनवाइट बीजेपी की ओर से आया था. हम उसमें क्यों जाएंगे? जहां पे हमारे शंकराचार्य नहीं जा रहे वहां पे हम क्यों जाएंगे? और भगवान राम के मंदिर में हमें इनका न्योता चाहिए. मतलब ये है कौन? आर दे मिडिल मैन? दैट्स व्हाट आई वांट टू नो. द रियलिटी इज कि जिस भगवान राम की आप बात करते हैं, ये थोड़ा हैवी ड्यूटी हो रहा है आपके. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत स्मार्ट ऑडियंस है. जिस भगवान राम की आप बात करते हैं, उस भगवान राम का तो राम राज्य है ना. मैं तो रामायण पढ़ती हूँ, उसमें लिखा है दैहिक दैविक भौतिकता पर राम राज नहीं कहूँ व्यापा. व्हाट डज इट से? दैट योर पॉलिसी मेकिंग नीड्स टू लुक एट द फेस ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर. जो अंतिम कतार में खड़ा व्यक्ति है, उसके लिए आप कुछ करते नहीं है. आप तो अडानी अंबानी की सरकारें चलाते हैं. आप क्या कर रहे हैं गरीबों के लिए? आपने इस देश की 83% आबादी की आय तो घटा दी है पिछले 10 सालों में. तो मेरा अपना मानना है, और जिस हिंदू धर्म सनातन धर्म की आप बात करते हैं, उसी सनातन धर्म में यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा गया है. लेकिन हाथरस हो या उन्नाव हो, शाहजहांपुर हो या लखीमपुर हो, बिल्किस बानो हो या अंकिता भंडारी हो या हमारी एथलीट्स हो, आप तो हमेशा औरतों को पैरों के तले रौंदते हैं. आप तो हमेशा आरोपी को संरक्षण देते हैं. ऑलवेज, विदाउट फेल. What business does the BJP have to talk about Hindu Dharma? The very basis of the Hindu Dharma is peace. हिंदू धर्म में कोई अनुष्ठान बिना शांति हवन के खत्म ही नहीं होता है. और शांति हवन में क्या कहते हैं? वनस्पति शांति, ग्रह शांति, नक्ष. We तो ask for peace of the animate and the inanimate. और आपने हनुमान को भी गुस्से वाला दिखा दिया, आपने राम को भी गुस्से वाला दिखा दिया. अरे आपने तो राम और सीता को भी अलग करने का काम कर दिया. द रियलिटी इज कि मुझे अभी भी याद है, मैं यूपी से आती हूँ, वहां पे जैसे राजस्थान वगैरह में राम राम सा होता है, हमारी तरफ जय सिया राम बोलते हैं. आपने तो जिस सीता के बिना भगवान राम का नाम अधूरा है, उनको भी हटा दिया. मतलब जब मैं अयोध्या गई, और मैं गई थी दर्शन करने, मुझे वहां कहीं सीता माँ दिखी ही नहीं. एक बड़े बड़े कटआउट्स मोदी जी के लगे थे और उनसे थोड़े से छोटे कटआउट भगवान राम के लगे थे. मतलब ये किस तरह के लोग हैं? ये कौन से धर्म का पालन करते हैं, ये मैं जानना चाहती हूँ. क्योंकि जो हिंदू धर्म हमने सीखा है, जो हिंदू धर्म शांति सिखाता है, भाईचारा सिखाता है, महिलाओं की इज्जत सिखाता है, गरीबों के हक की बात करता है, उसकी तो ये कोई बात नहीं करते. ये अपनी कन्वीनियंस से बात करते हैं. और असलियत ये है, एंड विनम्र ये तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, असलियत ये है कि 10 साल की अपनी मिसगवर्नेंस से, अपने अन्याय से, इन्होंने जितना अहित और जितनी बर्बादी हिंदुओं की करी है, बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग द लार्जेस्ट कम्युनिटी, किसी की नहीं करी है. आज सबसे ज्यादा बेरोजगार कौन है? हिंदू है या मुसलमान है? हिंदू है. आज सबसे ज्यादा महंगाई कौन झेल रहा है? हिंदू झेल रहे हैं, मुसलमान झेल रहे हैं? हिंदू झेल रहे हैं. आज गरीब सबसे ज्यादा कौन है? हिंदू है या मुसलमान है? हिंदू है. तो ये किस तरह से हिंदू है? और हमें इनसे ना ये सर्टिफिकेट चाहिए ही नहीं.